Chapter 1 The Wonderful World of Science from Class 6 Subject Science Book Curiosity अध्याय 1 अद्भुत विज्ञान की दुनिया As human beings, we have always been curious about our surroundings. मनुष्य के रूप में हम हमेशा अपने परिवेश के बारे में जिज्ञासु रहे हैं. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम अपने बचपन से ही अपने परिवेश का अन्वेषण करना और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपको स्कूल की प्रारंभिक अवस्था में दुनिया का पता लगाना और उसे अन्वेषण करना पसंद था? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. जब आप मध्य चरण में प्रवेश करते हैं, तो हम इस दिलचस्प यात्रा को जारी रखेंगे, इस खूबसूरत दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम रहते हैं. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान. विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है. What is science? विज्ञान क्या है? Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. विज्ञान एक सोचने, देखने और करने का तरीका है, जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं. Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. इसे एक बड़ी साहसिक यात्रा के रूप में सोचें. हम सवाल पूछते हैं, दुनिया का अन्वेषण करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिज्ञासा, और यही इस किताब के शीर्षक का मूल है. Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे वे रेत के छोटे कणों का अध्ययन करना हो, या विशाल पहाड़ों का, घास की एक पत्ती हो, या एक विस्तृत जंगल, हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने के लिए होता है. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि तारे क्यों चमकते हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? या एक फूल को खिलते देखा है और सोचा है कि यह कब खुलना जानता है. These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान सुलझाने में मदद करता है. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. विज्ञान की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह हर जगह है. This is the photo of a mountainous region. From the depths of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. समुद्र की गहराइयों से लेकर बाहरी अंतरिक्ष की विशालता तक, रसोई में पकने वाली चीज़ों से लेकर खेल के मैदान पर हो रही घटनाओं तक, कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोज अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से आती हैं. This is a desert. This is a coast. This photo is an underwater view of an ocean. And this photo is a galaxy. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. विज्ञान एक विशाल और अंतहीन जिगसॉ पहेली की तरह है. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हम जो भी नई खोज करते हैं, वह उस पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है. And you know the best thing about this puzzle. और इस पहेली के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? There is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे और अधिक सवाल उत्पन्न होते हैं और अधिक चीज़ें पता चलती हैं. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी-कभी हम पाते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत जगह पर रखा गया है
और उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नई खोजें अक्सर हमारे दुनिया के बारे में समझ को बदल देती हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको दिलचस्प विचारों का सामना करना पड़ेगा। कुछ विचारोत्तेजक प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हमें जो भी मिलेगा वह हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. और जब हम अधिक से अधिक खोज करते हैं तो हम यह महसूस करने लगते हैं कि ये सभी विचार आपस में जुड़े हुए हैं। What will we explore with the help of this book? We will start off by looking at our home planet Earth. हम अपने घर पृथ्वी ग्रह से शुरुआत करेंगे। It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. यह एकमात्र ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह जीवन का समर्थन करता है और इसमें एक ऐसा पर्यावरण है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जानवर जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में कामयाब रहे हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? आपने एक बीज को पौधे में बदलते, एक कैटरपिलर को खूबसूरत तितली में बदलते देखा होगा और कई अन्य अवलोकन किए होंगे। ये पौधे और जानवर कैसे बढ़ते हैं? Of course, to grow we need food to eat and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. बढ़ने के लिए हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और खासकर एक बड़े और विविध देश में जैसे भारत में भोजन बहुत रोमांचक होता है। Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? देश भर में हमारे पास अलग अलग व्यंजन हैं जिसमें कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं। वे किस चीज़ से बने होते हैं? हम कैसे पता लगाते हैं? Along with food, we need water to survive. खाने के साथ साथ हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। Water is such a delightful substance. पानी एक बहुत ही अद्भुत पदार्थ है। क्या आपने कभी बारिश में दौड़कर एक गड्ढे में कूदकर मज़ा लिया है? Do you ever wonder why and how it rains? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? क्या आपने देखा है कि पानी ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर भाप बन जाता है? Do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना या सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद है? How do we understand hot and cold? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? Whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. चाहे वह पानी हो या हमारे अपने शरीर में बुखार हो, किसी चीज़ की गर्मी का पता लगाना महत्वपूर्ण हो सकता है। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. The magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. फिर भी हमारे चारों ओर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक की स्केल और हमारे बॉक्स में रबर का इरेज़र, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे कपड़े, जिस कप में हम दूध पीते हैं और बहुत सी अन्य चीज़ें। What are they made of? वे किस चीज़ से बनी हैं? Are they made of different materials? क्या वे अलग अलग सामग्री से बनी हैं? How do we separate different materials from one another? हम अलग अलग सामग्री को एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं?
We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे हम इस पुस्तक का और अधिक अन्वेषण करेंगे, पृथ्वी पर हर चीज़ के बारे में हमारे सवालों की एक लगभग अंतहीन सूची होगी। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? लेकिन हमारे सवालों को केवल पृथ्वी तक ही क्यों सीमित रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। हम इसके परे की चीज़ों के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, सूरज, चांद और आसमान में चमकते लाखों तारे। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. चाहे आप एक पत्ती की संरचना के बारे में जान रहे हो, या समझ रहे हो कि चीज़ें कैसे चलती हैं, या मूंगफली के बीज की त्वचा को अलग कर रहे हो, हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का हर अध्याय आपकी जिज्ञासा को प्रज्वलित करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। और उम्मीद है कि आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। भले ही आपको इसका एहसास ना हो, आपने पहले ही अपने कई सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, वट वुड यू डू? मान लीजिए आपकी पेन लिखना बंद कर देती है, आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. आप खुद से पूछेंगे, मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप अनुमान लगाएंगे कि स्याही खत्म हो गई है। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. फिर आप इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए पेन खोलेंगे और स्याही का रिफिल चेक करेंगे। If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर यह खाली है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अनुमान सही था। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू? लेकिन मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि स्याही खत्म नहीं हुई है, अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। आप एक और अनुमान लगाएंगे, शायद स्याही सूख गई हो। यह जांचने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और प्रयास करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। यही विज्ञान का तरीका है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड। जिस तरह आपने यह पता लगाने की कोशिश की कि आपके पेन ने क्यों लिखना बंद कर दिया, वह वैज्ञानिक पद्धति का एक उदाहरण है। That is scientific method. Activity 1. Let us think and write. गतिविधि 1, आइए सोचें और लिखें। Write about a similar problem that you tried to solve. एक समान समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने की कोशिश की थी। What steps did you take? आपने कौन कौन से कदम उठाए? Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. विज्ञान सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने या प्रयोग करने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। यह एक चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करने के बारे में है जो हमें हमारे सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? फर्स्ट, we observe something that we find interesting or we do not understand. पहले हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसे हम दिलचस्प पाते हैं या जिसे हम समझ नहीं पाते। This makes us wonder and perhaps think of a question about it. यह हमें आश्चर्यचकित करता है और शायद इसके बारे में एक सवाल सोचने के लिए प्रेरित करता है। Then we guess a possible answer to that question. फिर हम उस सवाल का एक संभावित उत्तर अनुमानित करते हैं। We test this guess through experiments or more observations. हम इस अनुमान का परीक्षण प्रयोगों या अधिक अवलोकनों के माध्यम से करते हैं। We then try to analyze the results to see if it actually answered our question. फिर हम परिणामों का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं
कि क्या इसने वास्तव में हमारे सवाल का जवाब दिया। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. वैज्ञानिक वे लोग हैं जो समस्याओं को हल करने या नई चीज़ों की खोज करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का पालन करते हैं। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. लेकिन कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक पद्धति का पालन करता है वह वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा है। Something cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? खाना पकाने वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकल गई, क्या पानी ज़्यादा था। Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? एक साइकिल मरम्मत करने वाला व्यक्ति यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि टायर क्यों पंचर है, हवा कहाँ से निकली। Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? या एक इलेक्ट्रीशियन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्या बल्ब में या स्विच में कोई समस्या है। When we try to ask questions and find out answers, in a way, we are all scientists. जब हम सवाल पूछते हैं और जवाब खोजने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक होते हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। गतिविधि 2, आइए सोचें और लिखें। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। एक दैनिक जीवन की स्थिति का वर्णन करें जहां आपको लगा कि कोई वैज्ञानिक पद्धति का पालन कर रहा था। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या अब आपको एहसास होता है कि कई दैनिक जीवन की स्थितियों में हम जानबूझकर या अनजाने में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हालांकि हम सभी कुछ हद तक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। विज्ञान सीखने से हमें बड़ी समस्याओं के समाधान खोजने और ब्रह्मांड के अधिक रहस्यों को सुलझाने की हमारी क्षमताओं का विकास होता है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। और विज्ञान को अच्छी तरह से सीखने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है जिज्ञासु होना और अपने परिवेश का गहन अवलोकन करना। And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. और जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, कैसे और क्यों। Just remember, the world is full of things we do not know and things that are waiting to be explored. बस याद रखें, दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई है जिन्हें हम नहीं जानते, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस थिंक एंड राइट। गतिविधि 3, आइए सोचें और लिखें। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछना पड़े तो आप किसके बारे में पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अपने सवाल का जवाब खोजने का प्रयास कैसे करेंगे, यह लिखने की कोशिश करें। साइंस इज रेयरली डन अलोन। विज्ञान शायद ही कभी अकेले किया जाता है। Scientists across the world work together, often in large teams. दुनिया भर के वैज्ञानिक अक्सर बड़े समूहों में एक साथ काम करते हैं। So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. इसलिए यदि आप स्वयं जवाब नहीं पा सकते हैं तो अपने दोस्तों से मदद मांगें। It is always more fun to discover things together. एक साथ चीज़ों की खोज करना हमेशा अधिक मज़ेदार होता है। Of course, remember that you will not find answers to all your questions within grade 6. बेशक याद रखें कि आप कक्षा 6 के भीतर अपने सभी सवालों के जवाब नहीं पाएंगे। Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. चिंता ना करें, आप अगले 5 साल या उससे अधिक समय तक विज्ञान की यात्रा पर निकल रहे हैं। After all, to be a wise person, you must be a wise person. Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. बच्चों के बारिश का आनंद लेने की तरह विज्ञान खुश मिजाज अन्वेषण करने के
विज्ञान खुश मिजाज अन्वेषण के बारे में है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अपनी वैज्ञानिक यात्रा का आनंद लें, अन्वेषण करते रहें और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में आश्चर्यचकित होते रहें और सवाल पूछते रहें। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर चैप्टर 1 इज कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।